Hello students. So today we'll discuss two more important sections under capital gains. So this is section 50A, which is capital gains in case of electricity companies. So this is not very important from the examination point of view, I would say, but this is very important to know that in case koi bhi capital asset which is an asset of an undertaking which is engaged in either generation and distribution of power. Okay, so undertaking कौन सी इसमें applicable है, which is either engaged in the generation of the electricity or it is in the business of generation as well as distribution of the power, and that undertaking is claimed depreciation at certain percentage on actual cost under section 32 subsection 1 clause I that is 1 in any previous year. Okay, so उन्होंने depreciation भी claim किया हुआ है, whatever depreciation they are charging on that particular asset, that is your capital asset in this case. Then for the purpose of capital gains, the cost of acquisition shall be the actual cost of acquisition. So अभी हमने इससे पहले कौन सा concept किया था, depreciation concept, and उसमें we were focusing on the written down value of the asset. But whenever in the question it is specifically mentioned that that undertaking is in the business of generation of electricity or in the business of generation or distribution of the electricity or the power, in that case you don't have to consider the written down value. You have to take the actual cost of acquisition as your cost of acquisition. ठीक है, तो इस केस में आप रिटर्न डाउन वैल्यू को नहीं लेंगे, ना ही आप उसके बाद कैपिटल गेन्स को कंप्यूट करेंगे. और कैपिटल गेन का नेचर कैसे चेक करोगे? ऑन द रूल ऑफ 36 मंथ्स. So if it is greater than 36 months, it is long term capital gain. When it is less than or equals to 36 months, we say it is a short term capital gain. ठीक है? But you have to make one important point under this section is that in case when you are transferring the asset, the actual difference between the cost and the written down value will be chargeable to tax under the head of profit and gains from business and professions. Okay, so जब आप capital gain निकालोगे, you will consider the actual cost of acquisition. So sale consideration में से actual cost of consideration minus करके capital gain निकालोगे. But जो आपका difference होगा between the actual cost and the written down value of the asset, that difference will be chargeable to tax under your PGBP. ठीक है. सो अगर कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग आती है जिसका इलेक्ट्रिसिटी में अगर कोई भी उससे रिगार्डिंग बिजनेस है, तो आपको दो चीजें करनी है उसमें. आपको कैपिटल गेन भी निकालना है एंड यू हैव टू आल्सो कैलकुलेट द पीजीबी. ठीक है. द नेक्स्ट concept is your advance money forfeited, which is under section 51, and this is really very important. So let's just understand this in detail. So if the seller had received advance amount under the agreement of sale, but the sale was not completed and advance was forfeited by him. By whom? The seller. Then such amount forfeited will have the following tax treatment. Okay, so जैसे क्या होता है जब एग्रीमेंट्स होते हैं सेलिंग एंड बाइंग के फॉर कैपिटल एसेट्स, यूजुअली फॉर लैंड एंड बिल्डिंग, तो क्या होता है एक अमाउंट दे दिया जाता है, एडवांस अमाउंट. सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो वो फोरफीट लेते हैं, क्योंकि यूजुअली एडवांस ऐसे ही दिया जाता है कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीदूंगा. अगर वो नहीं खरीद पाता तो वो एडवांस जो ओनर होता है, सेलर होता है, वो फिर अपने पास रख लेता है, वो उसको वापस नहीं देता है. सो अगर कुछ भी ऐसा हुआ है तो इसके दो ट्रीटमेंट्स हैं. फर्स्ट इज if advance money is forfeited during previous year 13, 14 or any earlier previous year. So अगर कोई भी अमाउंट एडवांस अमाउंट forfeited है, क्वेश्चन में लिखा है कि it was forfeited during 13, 14 और prior to that year, in that case आपका क्या ट्रीटमेंट होगा? The amount forfeited is not taxable in the year of forfeiture or receipt. सो जिस साल में भी फोरफीचर हुआ है उस साल आप कुछ भी नहीं करोगे इस एडवांस मनी का. ठीक है, अगर वो एडवांस मनी आपका प्रीवियस ईयर 13, 14 या उससे पहले का है तो. बट इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? आप उस साल नहीं करोगे जिस साल यू आर एक्चुअली forfeiting it, but it will be deducted from the cost of acquisition or the fair market value or the written down value as per the case at the time of transfer of such asset for the purpose of calculation of capital gains. So capital gains का we follow a particular format, right, जिसमें हम सेल कंसिडरेशन में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन.
or there are various conditions in which we sometimes take cost of acquisition, sometimes we take written down value, sometimes we take the fair market value, right? We have already done so much sections in which different kind of a treatment is there. So जो भी होगा आपका उसमें से you have to subtract this advance money forfeited in the year in which the transfer has taken place, not the year in which you have forfeited the amount. Okay, it means that if such asset is not transferred, then this forfeited amount will never be taxable for the assessee. So ये amount टैक्सेबल ही जब होगा जब आप ट्रांसफर करोगे. अगर आप ट्रांसफर ही नहीं करे वो प्रॉपर्टी और आपके पास एडवांस फोरफिटेड रखा है तो वो आपके पास है, वो कभी भी इनकम टैक्स में नहीं जाएगा. Other important point is if advance was forfeited by the previous owner, then such amount will not be reduced. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका असेसी है अगर वो प्रीवियस ओनर से उसके पास आई है और प्रीवियस ओनर ने कभी एडवांस मनी फोरफिट किया था तो वो आपको नहीं करना है कुछ भी. ठीक है, चाहे आप वो ट्रांसफर भी कर रहे हो, यू विल नॉट सब्ट्रैक्ट इट. एंड इन केस द अमाउंट फोरफिटेड इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. ठीक है, जैसे आपने 50,000 का 2,000 कभी भी लिया था, 2000 में लिया था और आपने फोरफिटेड 1 लाख कर दिया तो आपका फोरफिटेड इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. सो इन दैट केस योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आई वुड से इट विल बी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि डेफिनेटली वो ज़्यादा लंबा पीरियड होगा तो वो आपकी निल हो जाएगी. ठीक है, सो एक तो आपको ये देखना है कि वो कब टैक्सेबल होगा. वो टैक्सेबल होगा जब ट्रांसफर हो रहा है, प्रीवियस ओनर ने किया या आपने किया, प्रीवियस ओनर के केस में नहीं होगा. प्लस आपको वैल्यू देखनी है कि वैल्यू इज हायर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और नॉट. उसका दूसरा ट्रीटमेंट है आपका ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 14-15 और एनी सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर. सो अगर आपके ईयर में लिखा हुआ है कि ये 14-15 का है या उसके बाद का प्रीवियस ईयर है तो उस केस में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, जो भी आपका अमाउंट फोरफिटेड है इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ फोरफीचर ओनली. ठीक है, सो जिस साल फोरफिट करोगे उस साल ही टैक्सेबल टैक्स देना पड़ेगा उस पर. बट किस पे दोगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे. आप इसको कैपिटल गेन्स के अंदर टैक्सेबल नहीं करोगे, आप इसकी इनकम कर दोगे एज under the head income from other sources, and subsequently it will not be deducted from the cost of acquisition when it will be ultimately transferred. So इसका मतलब ये है कि अब previous year 14-15 के बाद से जो भी अमाउंट फोरफिटेड है उसका सिंपल ट्रीटमेंट है कि उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से सब्ट्रैक्ट कर दो. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है. ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा. सो दिस इज योर क्वेश्चन. Okay, so Mr. X purchased a house on 18 September 2002 for rupees 1 lakh. ठीक है, on April 4, 2003 he entered into an agreement to sell the house to Mr. A for rupees 6,50,000 after receiving an advance of 10,000. Okay, so पहला हमने उसने एडवांस लिया है Mr. X ने 10,000 का. On A's failure to pay the balance within the stipulated period of 50 days, X forfeited the advance money. So now we know that previous owner है X जिसने 10,000 की amount forfeit किया हुआ है. और कब forfeit किया हुआ है उसने 2003 and 4 में. ठीक है, क्योंकि उसी साल वो agreement कर रहा था तो उस साल उसने forfeit किया. Now X died on October 12, 2003 and Mrs. X as per his will got the property. ठीक है, so now X is the previous owner. So previous owner ने 10,000 forfeit किया हुआ है. Now Mrs. X के पास आ गई है. Mrs. X entered into an agreement on 13th January 2004 to sell the property to Mr. B after receiving an advance of 80,000. So एक और हमारे पास advance आ गया है. And on B's failure to pay the balance within 2 months as per the agreement, the advance money is forfeited by Mrs. X. So this is the second one which is in previous year 2003 to 4, right? उसमें उसने forfeit किया. Now next is further Mrs. X entered into an agreement on April 6, 2019 to transfer the property to C after receiving an advance of rupees 1 lakh. So C से उसने फिर से एक advance money लिया है Mrs. X ने. Now again the C was not able to pay the balance consideration, so this amount is again forfeit. ठीक है, so 3 forfeited आ गए. Now Mr. X ultimately, Mrs. X sorry, his wife ultimately sells the property to Mr. Y on 26 June 2019 for this much. ठीक है, तो हमारे पास सेल कंसिडरेशन भी आ गई है.
Find out the tax consequences in the hands of Mr. X and Mrs. X for different assessment years and also calculate the net income of Mrs. X for the assessment year 2021. So it's very simple. हम पहले हर एडवांस जो भी मनी फोरफीट हुआ है उसका हम फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली हम टैक्स ट्रीटमेंट करेंगे. सो सबसे पहला जो आपका एडवांस मनी था वो था 10,000 जो एक्स ने लिया था ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 3-4. वो हमने बोला है कि 13-14 से पहले जितने भी होते हैं आपके वो सारे के सारे आप इन द ईयर ऑफ फोरफीटेड, जब भी आपने जिस ईयर में फोरफीट किया उसको आप कंसिडर करते ही नहीं. वो तब कंसिडर होगा जब आपकी एक्चुअल में प्रॉपर्टी सोल्ड होगी. सो इन दिस केस फॉर एक्स के लाइफ लाइन में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई ही नहीं. सो उसकी जो एडवांस फोरफीटेड था दैट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन्स, और ना ही वो प्रीवियस ओनर था, इसी वजह से वो मिसेस एक्स के में भी डिडक्ट नहीं होगी. सो ये 10,000 का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज 18,000. 18,000 किसने किया है? मिसेस एक्स ने. कब किया है? प्रीवियस ईयर 3-4. तो अब इसका ट्रीटमेंट वही 3-4 में तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, राइट, बिकॉज फोरफीटेड वाले केस में हम उस साल में करते ही नहीं है. बट जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से डिडक्ट हो जाएगा. तो ये 18,000 हमें पता है कि उस टाइम हम डिडक्ट कर लेंगे. सो अभी हमें इसका ट्रीटमेंट करना है. सो अभी वेट करो इसके लिए. नेक्स्ट इज forfeiture of advance money of 1 lakh by Mrs. X during previous year 1920. हमें पता है कि उसके बाद से 13-14 के बाद से अब जो भी होता है वो डायरेक्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाता है. तो इस केस में जो ये 1 लाख रुपीज का फोरफीचर है दैट विल डायरेक्टली गो अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. इट विल नॉट बी टैक्सेबल इन कैपिटल गेन्स. ठीक है. सो हमें ट्रीटमेंट हमें तीनों का पता चल गया. नाउ लेट्स कैलकुलेट दी टैक्सेबल इनकम फॉर मिसेस एक्स. सो मिसेस एक्स ने कितने में बेचा था ये? 42,90,000. सो सेल कंसिडरेशन वी हैव बीन गिवन. सेलिंग एक्सपेंसेस nil, so it is exactly similar. Now the concept of previous owner will come into the picture because Mrs. X has never purchased the property. It was being purchased by Mr. X. और कब किया था उसने? 1 लाख में उसने परचेज किया था प्रीवियस ओनर ने. बट हम इसमें से जो भी अमाउंट फोरफीटेड था मिसेस एक्स ने, जो मैं बोल रही थी ना आपको, इस 18,000 सॉरी 80,000 है. दिस इज नॉट 18,000. सेकेंड टाइम जब उसने किया था दैट वाज 80,000. सॉरी बेटा, इट इज अ मिस प्रिंटिंग हियर. इट इज 80,000. इट इज नॉट 18,000. ठीक है. तो हमने 80,000 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि मिसेस एक्स ने 80,000 रुपए फोरफीट कर लिया था. सो आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आई? आप 20,000. उसको अब आप इंडेक्स करोगे. सो इंडेक्स कौन से होगी? आपके फाइनेंशियल ईयर 3 और 4 के बेसिस पे, विच इज 105. मल्टीप्लाई करोगे आप द CII ऑफ द प्रीवियस ईयर 1920. सो आपका अमाउंट आ जाएगा, ये आप डिडक्ट कर दोगे एंड आपका अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपका ये 1 लाख पूरा का पूरा आ जाएगा. इसका कोई भी और ट्रीटमेंट नहीं होगा. सो दिस इज योर एडवांस मनी कंसेप्ट. एडवांस मनी का जो फोरफीचर वाला है बेसिकली दिस इज द कंसेप्ट. In case of any doubts, please feel free to reach out to me anytime. I'm very much happy to help you guys. और अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी यू कैन आस्क. बट फॉर माई मेन रीजन फॉर प्रिपेयरिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो इज टू मेक द कंसेप्ट क्लैरिटी ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो आपको इसमें बस प्रीवियस ईयर्स का ध्यान रखना है कि ये कब कब हो रहा है. ठीक है.